नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाल, ऑथर ऑफ Amazon bestseller book Unleash the Shakti Within, creator of India Sari Challenge Facebook group, an entrepreneur for the last 30 years doing my own business of renovating precious jewelry, and most important, I am the co-founder of Devditi Foundation. Devditi Foundation is a unique socio-cultural organization which works towards protecting our unique Indian heritage by reviving our culture and traditions. We empower urban women to empower themselves to lead enriched lives by participating in our numerous and various educative and entertaining programs which are held online and offline. देवदीति फाउंडेशन हर वर्ग की और हर उम्र की महिला का सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का काम करती है, फिर वे चाहे प्लेन एंड सिंपल होम मेकर्स ही क्यों ना हो। हर लेडी को एक सशक्त, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और आज देवदीति फाउंडेशन की इस कड़ी में और एक नई शख्सियत जुड़ रही है। इससे पहले कि हम उनको अनाउंस करें, मैं अपनी डायनेमिक को फाउंडर वंदना गुप्ता को इनवाइट करती हूँ कि वो आपको आके एड्रेस करें। Thank you, Bhabhi. Namaskar. I'm Vandana Gupta, a stockbroker. You know, my journey of discovering myself started when I co-founded a stockbroking firm and ran it successfully for 30 years. Then I wanted to do something for the society. Then I moved on and co-founded Devditi Foundation with Sapna. And as Sapna told you, we are not just reviving culture and heritage, working on women empowerment. We are sensitive to our environment also. And for this, we keep having tree plantation programs, waste management workshops, and refrain the use of plastics and disposables. And the most important vertical, which I'm trying to talk about, is our Devditi Humanitarian Bank. In this, we try to reach the lesser privilege. And for this, we first try and identify where the help is needed. And then we motivate our members for their time and energy and time and resources in whatever way they can contribute. Like lately, we, for the PM Care Fund, we donated 1.5 lakh. And it's a big amount for a small organization like us. So I request you all to join our hands to reach out to the lesser privileged in any way you can, your time or your resources. Thank you. And now I invite a young dynamic member, Nishu, जिसकी वजह से आज ये हमारी स्पीकर हमारे बीच में है. Over to you, Nishu. Thank you so much, Vandana Didi. Thank you so much, Sapna Didi. And a big thank you to Dolly Didi. Thank you so much. Dolly Didi को unmute करना है. I will just do it. Okay. Just a second. Okay. Now she's unmuted. Yes, Dolly Didi, thank you so much for being here. Thank you so much for inviting me at a platform like this, which is a very noble and a social cause issue. Otherwise, मुझे पता ही नहीं चलता. So, in fact, I should thank you for doing such a good favor to me. No, Didi, देवदीति is ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि हम लोग सब साड़ी पहनने वाले लोग हैं. So, लेकिन देवदीति जो है वो सिर्फ साड़ी के बारे में नहीं है. It's all about women empowerment. मतलब हम लोग यहाँ पे रेनू आंटी, सपना जी, वंदना दी, इस तरह के इतने सारे लोग हैं जिनसे हम इंस्पायर होते हैं. लेकिन आज हमारे साथ आप हो जो इतने लोगों को इंस्पायर करते हो. So, मैं ये जरूर चाहती हूँ कि साड़ी ड्रेपिंग की बात करने से पहले आप जरूर हमें ये बताएं कि what inspires you or what inspired you to get into it, and अगर बाई चांस अगर आप साड़ी के बारे में नहीं सोचते तो क्या सोचते?
So what inspired me would be कि मैं भी आपके जैसी हूँ, वरना मंग हूँ. I got married to a family where I only had to wear a sari. हमारे को बिल्कुल इजाजत नहीं थी कि हम कोई और कपड़ा पहने. जैसे आजकल की बहुओं को काफी फ्रीडम है कि वो कुर्ते भी पहन सकते, गाउन भी पहनते, वेस्टर्न भी पहनते. I mean, it is up to their choice. They can wear anything. We weren't given, especially I wasn't given any liberty such. और मैं बैंगलोर में पली बड़ी लड़की जो सिर्फ टी शर्ट और जीन्स का भाषा ही जानती थी. लिटरली मुझे जैसे बोलते हैं ना, आप पलक झपकते हो, अभी आप जीन्स में और आप पलक झपकते हो और आपको अगले दिन सुबह से साड़ी पहननी होती है. लिटरली मेरे साथ यही हुआ है. तो मुझे नहीं पता था कि माय ससुराल विल बी सो स्ट्रिक्ट एंड मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, मुझे और कुछ नहीं पहनने को मिलेगा. बट जब कोई और चीज की आजादी नहीं मिली तो लगा कि चलो इसी में वेरिएशंस करें. और यूजुअली ऐसा होता था कि जब मैं साड़ी पहन के जाती थी तो मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते थे. आई मीन पीपल यूज्ड टू रियली लाइक द वे आई वोर साड़ीज एंड दे रियली लाइक द वे आई कैरीड माय साड़ीज. सो आई थिंक कहीं ना कहीं वो एक किक था दिमाग में कि अच्छा मैं बहुत अच्छे से पहनती हूँ, या साड़ी इज द अटायर जिसको पहनने के बाद आपकी इच्छा होती है कि आप तैयार हो. जैसे आज निशो आपने साड़ी पहनी है तो आपने बिंदी भी लगाई है, आपने ज्वेलरी भी पहनी है. ये आज मैं कुर्ते पहनी हूँ तो ऑब्वियसली मैंने बिंदी नहीं लगाई. तो एक श्रृंगार की जो चीज होती है ना, वो पूरी मेरे को लगता है साड़ी के साथ जुड़ती है. आप कोई भी कुर्ता पहनो या आप कोई भी और चीज पहनो तो उसमें आपकी श्रृंगार कहीं ना कहीं अधूरी रहती है. सो ये भी एक चीज थी. और अगर मैं एक ड्रेपिंग नहीं करती तो मैं क्या करती? आई थिंक मैं एक बहुत बड़ा सारा नर्सरी खोलती और पेड़ पौधों के बीच में रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर एक ड्रेप आर्टिस्ट नहीं होती तो डेफिनेटली एक गार्डनर होती. मुझे गार्डनिंग करने का बहुत शौक है. आई हैव अ बिग गार्डन जिसको मैं खुद अभी मैनेज कर रही हूँ. लास्ट 2 महीने से कोई माली नहीं आ रहा है तो रोज उसको डिग करना, उसकी रीपॉटिंग करना. तो आई थिंक आई रियली एंजॉय स्टेइंग विद प्लांट्स. आई थिंक मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है, पेड़ पौधों से सीखने को मिलता है कि वो कैसे एकदम निस्वार्थ भाव से, वो ये नहीं देखते कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है या क्या है हमारा कास्ट, हम कैसे हैं, वो ये नहीं देखते. बट बड़े निस्वार्थ भाव से वो हमें ऑक्सीजन देते जा रहे हैं. तो आई थिंक ये एक बहुत मतलब मैंने किसी की एक लाइन्स पढ़ी थी, तब से जब मैं पौधों के साथ रहती हूँ तो मुझे लगता है कितने आप बिल्कुल भी मतलब ही नहीं हो, आपको मतलब नहीं है कौन है, आप बस हमें ऑक्सीजन दिए जा रहे हो, उसके बाद भी हम आपको काटे जा रहे हैं. आई मीन यू नो हाउ इट इज. सो आई थिंक आई वुड हैव बीन दैट अदरवाइज. Wonderful. Thank you, Nishu. Thank you for your inviting Dolly Ji. Now, Dolly, we suggest that you take the session. I can't hear you. Dolly, can you hear me? I'm sorry, I couldn't hear you at all. अच्छा, कोई बात नहीं. I'm saying thank you, Nishu, for introducing Dolly Ji to Devditis. Yeah. And I suggest आप सेशन फॉरवर्ड हो जाइए. डॉली, प्लीज बताइए कि कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई, कैसे आप यहाँ तक पहुंची और किस तरीके से आप क्या क्या करती हैं, रहती कहाँ हैं, पूरा बताइए. अच्छा, मैं एक्चुअली कहूँ कि मैं कहाँ रहती हूँ तो मैं रहती कैलकाटा में हूँ, लेकिन कभी कैलकाटा मिलती नहीं, क्योंकि मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल करती हूँ. महीने के 25 दिन कम से कम ट्रैवल करती हूँ. वेडिंग सीजन में बहुत बार ऐसा होता है कि लिटरली रात में लैंड करते और अगले दिन सुबह की फ्लाइट वापस लेते हैं. वो लैंड भी इसलिए करते ताकि एक बार मैं अपनी दोनों डॉटर से मिल लूं, हस्बैंड से मिल लूं. तो इस चक्कर में लैंड करते हैं. बहुत हेक्टिक स्केड्यूल रहता है, बहुत ट्रैवलिंग रहती है. बट हाँ, इनिशियल डेज ऐसे नहीं थे, क्योंकि आपको भी पता है कि एक सोसाइटी हमारी ऐसी है कि एक औरत उस रास्ते पे चले जो सड़क नहीं बनी हुई हो तो आपको पता है समाज बिल्कुल भी इसको रेडिली एक्सेप्ट नहीं करता है. बहुत बहुत डिफिकल्टी थी लिटरली उस प्लेटफॉर्म को बनाना. साड़ी ड्रेपिंग एक ऐसा कैटेगरी था जो क्रिएटेड ही नहीं था. मतलब आप लोगों से सुनोगे कि वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो हेयर आर्टिस्ट है, या वो एक ब्यूटिशियन है, ये भी एक कैटेगरी होया करती थी. बट एक ड्रेप आर्टिस्ट की कैटेगरी नहीं बनाई गई थी. तो एक कैटेगरी बनाना बहुत डिफिकल्ट था मेरे लिए. इनिशियल डेज में लोगों मतलब हमारे जो एक्सटेंडेड फैमिली है, फ्रेंड्स है, उनका कहना था कि डॉली का दिमाग खराब हो गया है,
पता नहीं वो क्या कर रही है, साड़ी पहनाने का काम शुरू किए। तो मुझे भी लगता था कि वाकई में कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया मेरा, कहीं मैं ऐसा कुछ तो नहीं कर रही हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए, कहीं ऐसा ये स्ट्रीम तो नहीं है जिससे मेरे फैमिली को या मेरी डॉटर्स को रीपे करना पड़ेगा मेरा ऐसे डिसीजन को। क्योंकि आपको भी पता है कि आज आज हमारी जो डिसीजन है वो बहुत कुछ डिपेंड करती है हमारे बच्चों के लिए भी। तो ऐसा नहीं हो कि हमें कोई ऐसे बोले कि अरे वो साड़ी वाली की लड़की जा रही है, सो आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और बहुत कुछ मैंने सोचा, बट फिर लगा कि नहीं, मैं इससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। और मुझे हर बार ऐसा लगता था कि नहीं, मैं इसमें इतने वेरिएशंस ला पा रही थी। तो जब सारी दुनिया ने मतलब अदर देन माय फैमिली, मेरी फैमिली तो शुरू से बहुत सपोर्टिव रही है, बट बाकी जो एक्सटेंडेड लोग थे उन्होंने बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। वो बहुत डिफिकल्ट टाइम था। तो एक दिन मुझे याद है कि मैं किसी की ड्रेपिंग करने के लिए गई थी, और लिटरली उनको तैयार होना था 2 बजे और उन्होंने मेरे को 11 बजे बुला लिया। अच्छा, और मैं क्योंकि बैंगलोर से है और मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट रहे हैं टाइम के मामले में। अगर पापा ने कह दिया कि 5 बजे हम घर से निकल जाएंगे, तो अगर कोई नहीं रेडी है तो उनको मतलब नहीं है, वो 5 बजे निकल जाते थे। तो हम लोग बहुत स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स में रहे हैं, तो हम लोग को वैसी आदत थी। तो जैसे ही पापा ने कहा, मैंने पापा को बोला कि अच्छा, मैं वहां पे बैठी रही उनके ड्रेप करने के लिए। ठीक है, मैंने बैठ के उनका ड्रेप किया, बट जो स्टाफ थे वहां के, वो एड्रेस ऐसे कर रहे थे कि मैम आपकी साड़ी वाली आ गई, मैम आपकी साड़ी वाली आपका वेट कर रही है। सो कहीं ना कहीं आपको बहुत डिप्रेसिंग फील होता था कि इसको एक नाम क्यों नहीं दिया गया। अगर मेरी वाली काम आप कर लेते तो मैं आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट पैदा ही नहीं होती। सो घर में मैं आई बड़े रोते रोते कि पापा, उन्होंने मुझसे ऐसे कहा है और मुझे बहुत खराब लग रहा है। तो पापा ने कहा कि बेटा, एक चीज याद रखो, एक्चुअली ये हो सकता है शब्द थोड़े हार्श हो, बट एकदम टू द पॉइंट थी। पापा ने कहा कि कुत्तों का काम भौंकने का है, और हाथी कुत्तों के भौंकने से नहीं रुका करते। तो अपने आप को समझो हाथी। और एक्चुअली उन्होंने समाज को कुत्ते कहा था, बट क्योंकि वो एक पॉजिटिव तरीके से समझाने का एक तरीका था कि अगर आपको आगे बढ़ने का जज्बा है और आपके अंदर ऐसी एक कला है जिसको लेके आप आगे बढ़ सकते हो, तो आपको ये सारी चीजों को नजरअंदाज, एक पैड लगानी पड़ेगी कान के अंदर कि भाई आपको ये सारी चीज नहीं सुननी है, और फोकस करके आपको अपने करियर पे आगे बढ़ना है। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट आई डिड। जिस दिन पापा ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया, द फर्स्ट थिंग आई डिड वाज, मैं एक मैनिक्विन खरीद के लेके आई, और लिटरली रात के 11 बजे स्टार्ट करती थी और 2-2:30 बजे तक मैं रोज नियम से मैनिक्विन के ऊपर प्रैक्टिस करती थी। और जब कोई ड्रेप आ जाता था तो उसकी पिक्चर क्लिक करती थी और फिर सोती थी। तो ऐसे करते करते हुआ यूं कि मुझे एक साड़ी को मैं 80 तरह से पहना पाई, 80 तरह से मैनिक्विन पे ड्रेप कर पाई। तब तक ऐसा लगा कि पता नहीं इसमें करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, बट ये एक शौकिया तौर पे मैंने इसको स्टार्ट किया था। फिर मैंने लिम्का रिकॉर्ड लोगों को अप्रोच किया कि मैं एक साड़ी को 80 तरह से पहना सकती हूँ। तब उनका मेरे पास रिवर्ट आया, ये क्या है, मेरी मम्मी तो रोज साड़ी पहनती है। तो मैंने उनको कहा कि हाँ एकदम आपकी मम्मी रोज साड़ी पहनती है, बट वो 80 तरह से नहीं पहनती है। तो मैंने उनको एक सीडी भेजी। फिर उनको इतना अच्छा लगा कि लिम्का रिकॉर्ड से 4-5 लोग कैलकाटा आए। उन्होंने पूरा मेरे को ड्रेप करते हुए, मैनिक्विन पे ही ड्रेप किया था मैंने, पूरा देखा, और फिर मुझे मेरा फर्स्ट सर्टिफिकेट मिला। उस सर्टिफिकेट से मुझे एक मॉरल बूस्ट हुआ और मुझे ऐसा लगा कि वाकई कुछ किया जा सकता है, इसका एक फ्यूचर है, इस चीज में एक भविष्य है। एंड देन आई थिंक मैं अपने रिकॉर्ड्स खुद तोड़ती गई। मेरा दूसरा रिकॉर्ड था, एक लिम्का रिकॉर्ड था, एक साड़ी को 125 तरह से पहन के। फिर दूसरी रिकॉर्ड जो मैंने बनाई, तीसरी रिकॉर्ड 2 साल के बाद बनाई, एक साड़ी को 225 तरह से पहन के। अभी मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मैं एक साड़ी को, एक नहीं एक्चुअली 2-3 साड़ी को मिक्स करके
क्योंकि मैं 3 साड़ी एक साथ पहना सकती हूँ और आपको एकदम एज इट इज दिखाऊंगी। सो एक साड़ी को मैं साड़ी को 325 तरह से पहना के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई हूँ, और मैं पूरे विश्व में आई एम द फास्टेस्ट ड्रेपर टू ड्रेप अ साड़ी इन 18.5 seconds. सो आई थिंक ये सारी उपलब्धि मिलती चली गई। फिर कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियलिस्ट मिले मुझे, उन्होंने मेरा काम देखा, फैशन डिजाइनर्स ने मेरा काम देखा, फिर अल्टीमेटली बॉलीवुड तो आपको पता है कि स्पेशलिस्ट का लैंग्वेज समझते हैं, तो बस मुझे बॉलीवुड ने उठा लिया और आज आपके सामने बैठी हूँ मैं। बिल्कुल, your story has been so inspirational, Dolly. When I was looking you up, 325 तरीके से साड़ी पहनाना, and with the kind of work that you've done coming from a बनिया household, तो ये सब उपलब्धियां क्या शादी के बाद हुई हैं आपके साथ, या शादी से पहले भी आप करती रही हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल भी शादी से पहले नहीं। मेरी शादी को 25 साल पूरे हो गए, इसी मई में लॉकडाउन में मैंने सेलिब्रेट किया है। और मेरे को ड्रेपिंग करते हुए 17 साल हुए हैं। तो मेरी सारी की सारी जर्नी शादी के बाद शुरू हुई। जब जैसे मेरी एक्चुअली पहले आपको एज ए लेडी आई थिंक आई वुड सजेस्ट एवरीवन दैट गिव योर टाइम टू योर फैमिली, फिनिश योर फैमिली प्लानिंग थिंग, आई मीन यू नो वंस यू आर डन विथ योर किड्स एंड एवरीथिंग। क्योंकि क्या होता है, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि तब आपके करियर में कहीं एक ब्रेक नहीं आती है। नहीं तो क्या होता है कि अगर आप इनिशियल में स्टार्ट करते हो, फिर आपके इन बिटवीन ये सब आते, तो एक करियर में आपकी ब्रेक आती है। तो फॉर्चुनेटली आई वाज लकी इनफ, मैंने स्टार्ट किया था जब मेरी जो छोटी वाली डॉटर है वो साल भर की हो गई थी, तब मैंने अपने इस चीजों को और एनहांस करना, मतलब दिमाग में कहीं ना कहीं ये घर करने लग गया था। बट इसको फुल फ्लेजेडली मैंने स्टार्ट किया वंस आन्या वाज अ ईयर ओल्ड एंड नाउ शी इज 16. Wonderful. So Dolly, we need to hear about जो सब लेडीज को एक्साइट करता है कि किन सेलिब्रिटीज से, किन बॉलीवुड से, किन किन लोगों से आप मिलती रही हैं, उनके लिए काम करती रही हैं. So we would like to know a little about that journey of yours. सो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ मेरी बॉलीवुड में एंट्री कैसे हुई। और एक बहुत छोटी सी चीज है कि बॉलीवुड के एंट्री से पहले भी मैं एक बॉलीवुड स्टार से मिली थी। मैं बचपन से आई थिंक हम सब एक सेलिब्रिटी को देखते देखते बड़े होते, और यू नो वी बीन अ फैन ऑफ सम। सो मैं श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फैन रही हूँ, बहुत बहुत बड़ी। सो हुआ यूं कि बॉम्बे में जिस जगह पे श्रीदेवी जी रहती, उसी के 8th फ्लोर में मेरे ओन मामा रहते थे, और मैं हॉलीडे के लिए उनके यहाँ गई हुई थी। ये शादी से पहले की बात है, और सॉरी मेरे शादी के बाद की बात है, बट करियर शुरू होने से पहले की बात है। तो मामा के यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी थी और श्रीदेवी जी भी इनवाइटेड थे, so she was also there for the party. So there was something that happened with her sari, so she came in the room to correct that little part of it. So I just told her that okay, I'll help you out with it. So she's like, you know, I'll do it. I said, no, but I can help you. I don't know why, because maybe because किसी के आप फैन होते हो तो आपको लगता है कि आप मोर देन 100% देना चाहते हो, आप आउट ऑफ द वे जाके उनके लिए कुछ करना चाहते हो। तो मैंने उनकी साड़ी थोड़ी सी प्लीट्स मेरी बहुत अच्छी बनती थी, तो मैंने उनकी प्लीट्स बहुत जल्दी से बना दी। तो इमीडिएटली वो मेरे को देख के बोलते कि डॉली तुम्हारे हाथों में जादू है, जिस तरह से आपने प्लीट्स बनाई है मैंने आज तक किसी को इतनी जल्दी प्लीट्स बनाते हुए नहीं देखा, तो आप इसे करियर की तरह क्यों नहीं लेती हैं। और मुझे ऐसा लगा कि करियर आउट ऑफ साड़ी ड्रेपिंग, अच्छा तब तक मैंने सोचा ही नहीं था, बिकॉज आई थिंक आन्या वाज नॉट बोर्न, एंड आई थिंक मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था इस चीज को, बट हाँ रेगुलर साड़ी तो पहनते थे। तो आई थिंक दैट वाज अ वेरी वेरी वार्म मोमेंट फॉर मी, जो मैं कभी भी नहीं भूल सकती हूँ। वो आज हमारे बीच में नहीं है, बट उनकी ये बात कि डॉली आपकी उंगलियों में जादू है, आप इसे करियर की तरह क्यों नहीं लेते, जब भी मैं कोई एक प्लेटफॉर्म पे बोलती हूँ या जब भी मैं कोई एक प्लेटफॉर्म पे जाती हूँ, हमेशा याद आता है कि उनके ये जो शब्द थे, शायद यू नो आज मैं उसे कहीं ना कहीं किसी रूप में साकार कर पा रही हूँ। और बॉलीवुड में घुसने का एक बहुत ही अच्छा चीज रहा कि मैं हुआ हिंद में किसी की शादी कर रही थी, जहाँ पे संदीप खोसला, अपने आबू जानी संदीप खोसला जो हमारे रेनाउंड डिजाइनर है इंडिया के,
तो वो भी उस शादी में आए हुए थे, और जो ब्राइड के दुपट्टे उन्होंने बनाए थे, एक्चुअली दोनों दुपट्टे बहुत भारी थे। तो अब वो जब ब्राइड के ऊपर हम डाल रहे थे दुपट्टा, तो ब्राइड वाज लाइक, ओ माय गॉड संदीप, द दुपट्टा इज सो हैवी, मैं कैसे पहनूंगी, देखो कितना काम है इसमें। नो डाउट द दुपट्टा वाज ब्यूटीफुल, बट इंडीड इट वाज हैवी। सो यू नो, टिल देन वो संदीप से बात कर रही थी, मेरा इंट्रोडक्शन तब तक ब्राइड से नहीं हुआ था, और मैंने ब्राइड का चीज फिक्स किया, एंड आई आस्क्ड हर, आर यू फीलिंग द वेट ऑन योर शोल्डर्स? सो शी इज लाइक, not at all, where is the work gone, have you cut the work? I said, will I cut your dupatta? So वो दुपट्टे को अच्छी तरह से फिक्स करके वो हो गया, और उसी तरह से मैंने उसके सर के दुपट्टे को इस तरह से फिक्स किया कि उसको बिल्कुल भी मूवमेंट में प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, बहुत इजी लग रहा था। एंड उसने संदीप से कहा कि संदीप, नो डाउट द दुपट्टा वाज वेरी हेवी, बट दिस गर्ल हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब, एंड इतने अच्छी तरह से इसने फिट किया है। So I think that was, I'm talking about almost 10 years back, this whole thing. फिर उसके बाद you know, संदीप खोसला took my number, and उसके बाद कुछ छोटे छोटे वेडिंग्स वो देना शुरू कर दिए, wherein उनको लगता था कि भाई ये अच्छी वेडिंग्स है और इसमें एक ड्रेपर की जरूरत है। So that's how big weddings मेरे पास आना शुरू हो गया। And then one fine day, I get a call from Sandeep saying that Dolly, you have to come for trial, and we are doing Salman Khan's sister's wedding. So that was like a entry into the Bollywood industry, and I was there with Salman Khan's family for 12 days. We did Arpita ka pura draping, all her pre-wedding functions, her wedding and post-receptions, and all that. उस दौरान मैं हेलन आंटी से, सलमा आंटी से बहुत क्लोज हो गई उनकी फैमिली से। एंड मुझे अभी भी एक किस्सा याद है कि फलकनुमा पैलेस में हम वेडिंग कर रहे थे अर्पिता की, और वहां पे लो नेटवर्क एरिया है, बिल्कुल आपके फोन में नेटवर्क का बहुत बड़ा इशू होता है। तो मैं एक्चुअली हेलन आंटी के साथ थी और उनका ड्रेपिंग कर रही थी, और शायद अर्पिता को मेरी जरूरत थी और हमारा फोन नहीं लग रहा था। तो सलमान भाई बाहर आके बोलते, ड्रेप दीवा डॉली कहाँ है आप? तो मुझे लिटरली ऐसा लगा कि भगवान इससे रिकॉर्ड करके रख लो आप, पता नहीं कोई दोबारा सुनने को नहीं मिलेगा मुझे ये चीज। तो आई थिंक आई वाज सो ओवरवेल्म्ड दैट बॉलीवुड हमेशा एक टैगलाइन मुझे देता चला गया। सो यू नो, जैसे सलमान ने ड्रेप दीवा डॉली कहाँ है, तो D3 का टैग दे दिया मुझे। उसके बाद से सबको ही मुझे ऐसे एड्रेस करने लगे कि D3 कहाँ है, D3 कहाँ है, you know, that ways. So I think that was another moment for me with the whole family. And उसके बाद I think I did a lot of Bollywood actresses for their shoots, for their magazine shoots, you know, cover pages, and for their media appearances. फिर उसके बाद सोनम कपूर की शादी मैंने की, फिर प्रियंका चोपड़ा, फिर उस साल की तो सारी शादियां, सोनम, प्रियंका, दीपिका, ईशा, आकाश, आई थिंक लाइन से आई डिड ऑल द वेडिंग। उसके बीच में भी जो शादियां थी वो भी, मतलब उन दिनों तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं लिटरली धरती पे चल पा रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ, क्योंकि ड्रेप करते फिर उड़ जाते, फिर ड्रेप करते फिर इधर उड़ जाते। तो आई थिंक it was a very very you know, a proud moment for me also, that आपको ये लगे कि साल की जो बेस्ट वेडिंग्स है और जो हाई प्रोफाइल वेडिंग्स है, वो सारी वेडिंग्स से आप जुड़े हुए थे। So you know, it just gives you so much more energy to come up with more ideas, ताकि आप लोगों के लिए जो ब्यूटीफुल इंडियन आर्ट है, एक तो इतना सुंदर ये कपड़ा है, और दूसरा ये इतनी सुंदर यू नो तरीके हैं इसको पहनने की। अलग अलग स्टेट अलग अलग कपड़े बनाता है, और अलग अलग स्टेट अलग अलग तरह से पहनता है। तो आप सोचिए, हम ही एक पूरी दुनिया है हमारे चारों ओर साड़ी को लेके। तो आई थिंक देयर इज नो एंड टू इट। इनफैक्ट मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं एक कॉफी टेबल बुक लिख रही हूँ जिसका टाइटल है 365 styles of draping a sari. Each day I give you a new drape, so you don't crib about not having a new garment with you. So you take up sarees from your wardrobe, from your mother's wardrobe or your granny's wardrobe, club it with your
मे बी योर डॉटर्स क्रॉप टॉप एंड योर डेनिम, एंड कुछ ना कुछ क्लबिंग मैंने बहुत सारी जगह एड ऑन किया है. तो आई थिंक ये भी एक नया चीज रहेगा दुनिया के लिए. So I'm just waiting for the book to release and for me to give it all to all of you. Wow, Dolly, wow, inspirational lady with an inspirational story. हमारी बहुत सारे आपके फैंस डॉली चाह रहे हैं कि आप ड्रेप करके दिखाएं. आज आप हमें क्या दिखा रही हैं? ड्रेप करके आप क्या दिखाएंगी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर? सेकेंडली, व्हाट वी वांट टू नो इज, जब आपको इतनी नेम और फेम मिल रही थी, तो ये सो कॉल्ड समाज, सो कॉल्ड आपका घर, क्या रिएक्शन रहे सब लोगों के? I think ghar was very normal because they saw me growing, you know, they've seen me growing. And I think they were obviously हर बार कोई सर्टिफिकेट आता है या कोई अवार्ड आता है या कोई स्टोर के यू नो शोरूम की ओपनिंग में जा रहे हो आप, आज कोई न्यूज़पेपर में आपकी चीज आ रही है, तो ऑब्वियसली द फैमिली, मोर देन माय फैमिली, आई थिंक माय फादर इन लॉ, ओ माय गॉड, वो तो सारी कटिंग्स लेते, उसको सारे को काटते, न्यूज़पेपर की कौन से डेट पे क्या, ये सबको रखते एंड फिर लैमिनेट करा करा के उन्होंने रखा है. आई मीन लिटरली वो बोलते हैं कि बेटा ये सारी चीजें आप अच्छी तरह से रखो, बट बिकॉज when you will retire, when you would want to sit back and see what you've done, आप ये सारी चीजों को लेके जब हाथ में रखोगे तो आपको लगेगा कि वाकई आप जब आपने धरती पे आने का कारण सफल कर दिया अपना. So I think that is something I really adore about him. And mother-in-law को thank you करना चाहूंगी क्योंकि I think वो अभी यहाँ नहीं है, वो बहुत समाज सेवी जन है हमारे. So उन्होंने फोर्सफुली जो मुझे साड़ी पहनाए रखी कि नहीं यही पहनना पड़ेगा, वो आई थिंक आज बहुत हेल्प कर रही है मुझे. तो आज मैं आपको क्या दिखाने वाली हूँ, पूरा ड्रेप दिखाना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, वी ऑल नो दैट, बट मैं डेफिनेटली आपको प्लीट्स बनाने के कुछ अलग अलग तरीके दिखाऊंगी. और मैं आज आपको ये चीज के बारे में बात करना चाहती हूँ कि साड़ी हम पहनते हैं तब हमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये लगता है कि हमारा नाड़ा ढीला हो जाता है, हमारी साड़ी भारी साड़ी लटक रही होती है, या हम बहुत ज्यादा नाड़ा टाइट कर लेते हैं तो वो इतना ज्यादा लाल हो जाता है. तो आई थिंक ये सारा प्रॉब्लम्स का एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं 15 साल से सोच रही थी कि कुछ ऐसा प्रोडक्ट लाना चाहिए दुनिया के पास जो सबको हेल्प करे. तो क्या होता है जब अगर आप एक साड़ी पहन रहे हो तो प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपकी नेवल नाड़ा टाइट से बंधा हुआ रहा तो आपको निशान हो जाएंगी, और ढीला से बंधा हुआ रहा तो आपकी साड़ी लटक जाएगी. और मैं आपको दिखाती हूँ ये चीज, ये दिखाती हूँ. इससे पहले मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है. हुआ यूं, ये देखिए ये है, अभी मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ पहले ताकि आप इससे कनेक्ट कर सके कि ये चीज क्या है. सो हुआ यूं, आप सबको पता है, हम लोग सब बीइंग हाउसवाइफ्स एंड बीइंग प्रॉपर आदर्श बहूज, हम लोग मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, और भी जो हमारे डे टू डे चीजें हैं वो सारे करते हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है कि मतलब मैं हमेशा जब भी साड़ी पहनती हूँ हमेशा 4 इंच की हील पहनती हूँ, मैंडेटरी हूँ, क्योंकि मैं बहुत लंबी नहीं हूँ. तो मुझे ऐसा लगता है 4 इंच की हील आते मेरे को एक साड़ी के हिसाब से मेरी हाइट ठीक हो जाती है. अब मुझे जाना था शिखर जी दर्शन करने के लिए, और मैंने फटाफट पैकिंग की, एक साड़ी रखनी थी, पैक की और चले गए. वहां जैसे ही पेटीकोट पहनना स्टार्ट किए तो देखा पेटीकोट तो हील के हिसाब से, और मंदिर दर्शन में हम हील नहीं पहन सकते, तो मेरी जो पेटीकोट वो 4 इंच लटक रही थी. अब अगर आप ऊपर फोल्ड भी करोगे तो कितना फोल्ड करोगे, क्योंकि साड़ी टक करते तो फोल्ड खुल जाती है. तो मैंने एक कैंची ली और 4 इंच की पेटीकोट काट दी, क्योंकि दैट वाज द ओनली सॉल्यूशन दैट आई हैड. ठीक है भाई, काट दिया. उस वक्त साड़ी पहने, दर्शन करे, वापस कलकत्ता आ गए. वापस से 1 हफ्ते बाद मुझे सेम रेड कलर की साड़ी थी, मुझे ध्यान है, और रेड कलर का पेटीकोट मुझे दोबारा पहनना पड़ा. अब जब मैं उसे पहन रही थी तो मुझे हील पहनना था, अब वो 4 इंच छोटी हो गई. अब मुझे लगा अब तो इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं, तो मुझे अल्टीमेटली साड़ी बदलनी पड़ी. बट मुझे ऐसा लगा कि क्या हमारे पास इतना बड़ा वार्डरोब है कि हम उन साड़ियों को ऐसे रख सके, पेटीकोट्स को ऐसे रख सके कि ये हमारा पूरा सेट है बिना हील के, ये हमारा है 2 इंच हील के, ये हमारा है 4 इंच हील के. ऐसे ये तो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है.
तो हम बोले क्या किया जाए। और फिर मैं एक ब्राइड कर रही थी उदयपुर में, और उदयपुर में जब मैं उस ब्राइड को कर रही थी तो उस ब्राइड ने शादी से पहले अपने पेटीकोट को स्टिच करवाया था। और क्योंकि ब्राइड्स को ऐसा लगता है कि हम एकदम, ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू लुक ब्यूटीफुल, एवरीबडी इज ब्यूटीफुल एंड एवरीबडी वांट्स देयर फिगर टू बी फ्लॉन्टेड ड्यूरिंग द वेडिंग, सो उसने बड़ी ही टाइट फिटिंग से अपने पेटीकोट को स्टिच कराया। अब हुआ क्यों कि पेटीकोट स्टिच कराया और आई थिंक उसने कोई 1 किलो पुट ऑन किया होगा। और आपको भी पता है जब वेट पुट ऑन होता है तो इस जगह पे तो असर बाद में आती, सारी असर नीचे दिखती है। तो अब वो हो गया थोड़ा सा टाइट, बट किसी तरह साड़ी ड्रेप हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब साड़ी ड्रेप करके जैसी वो निकली तो मम्मी जी ने कहा कि बेटा पहले भगवान के हाथ जोड़ लेते हैं अपन। तो अब बहू रानी बैठे कैसे नीचे, उसकी पेटीकोट इतनी टाइट कि वो तो सिर्फ सोफे तक पहुंच सकती है, वो नीचे तो फोल्ड करके बैठ ही नहीं सकती है। तो अब तो वो बैठ ही नहीं कर पा रही थी। अब वो ना तो अपनी मदर इन लॉ को बोल पा रही थी, और फॉर्चुनेटली मैं उसके पास थी, तो मैंने इशारा किया कि थोड़ा सा ऊपर खींचो, आई मीन साइड थाई एरिया से आप पेटीकोट को खींचो, बैठ जाओ, उसके बाद मैं ठीक कर दूंगी। तो ठीक है, वो उसी इंस्ट्रक्शन से बैठ गई, अपना जो पूजा करना था पूजा की। साड़ी पूरी इस एरिया में, लिटरली इस एरिया में इकट्ठी हो गई। उसके बाद मैंने उसको ठीक कर दिया, तो स्टिल देन एवरीथिंग वाज फाइन। बट मुझे ये ध्यान में आ गया कि अगर कोई और ब्राइड भी इस तरह का गलती करती है तो आप सोचिए कि पेटीकोट्स वो एक बार पहन ली और उसके बाद अगर वो वेट पुट ऑन कर लेती है तो वो पेटीकोट्स बिल्कुल भी काम नहीं आते। तब वहीं से पैदा हुआ हमारा ये नया पेटीकोट, जिसका नाम मैंने रखा है दी कोट। क्योंकि मुझे लगा कि पेटीकोट थोड़ा ऐसे साइडी टाइप का लगता है। किसी को, मैं किसी यंग जनरेशन के बच्चों को बोलूं कि चलिए पेटीकोट और ब्लाउज लेके आओ, तो वो तो मेरे को नहीं लगता, मेरे आजू बाजू भी भटकने वाले हैं, सब भाग जाएंगे मेरे को छोड़ के। तो मुझे लगा कि एक ऐसा इंग्लिश नाम दे जो हो इंडियन ही, बट थोड़ा इंग्लिश का अपन उसमें फ्लेवर डाल दे। तो इट वाज अपॉस्ट्रोफी डी अपॉस्ट्रोफी कोट। तो डी से आ गया ड्रामा, डी से आ गया ड्रेप, डी से आ गया डिजायर, डी से आ गया डिटरमाइंड एज वी ऑल आर, डी से आ गया आपकी फेवरेट डॉली। सो आई थिंक दीज थिंग्स वेर ऑल देयर एंड डी कोट हमने रखा। अब इसके फीचर्स देखिए। अब हमने इसको बनाया है इस तरह से, ये देखिए ये चीज। अब इसमें जब आपको पहनना है हील के साथ, तब आप ये वाला ड्रॉस्ट्रिंग यूज करेंगे। ये देखिए आपको दिख रही है अच्छे से, ये वाली। और जैसे आपको हील के बिना पहनना आप ये वाला यूज करोगे। और इसमें देखिए ये है हील के साथ, और ये हो गया आपका बिना हील। सो ये चीज इसकी बहुत बड़ी फीचर है। सेकेंड थिंग इज इसका स्ट्रेचेबल फैब्रिक। अगर आप 1 किलो 2 किलो 3 किलो पुट ऑन कर लेते हैं तो भी आप देखिए इसकी फैब्रिक, इसकी स्ट्रेचेबिलिटी आप देखिए। तो अगर जो वो लड़कियां हैं जो बहुत टाइट फिटिंग पहनना चाहती है, मैं उनको सजेशन दूंगी कि आप अगर स्मॉल में फिट हो रही हैं तो आप मीडियम खरीदिए। पेटीकोट एकदम बॉडी हगिंग होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वो जो सारे आप एड्स और वो सारे जो यूट्यूब में ये वो देखते हैं जो एकदम फिटेड पेटीकोट है, प्लीज मेरा पर्सनल एडवाइस रहेगा कि एकदम पेटीकोट फिटेड नहीं पहने। प्रैक्टिकल सी नॉलेज है कि अगर हम बॉडी हगिंग पेटीकोट पहन लिए तो हम वो साड़ी को कहाँ घुसाएंगे। अगर हम वो साड़ी को घुसा भी दिए तो वो क्या होगा, यहाँ पे सारी की सारी इकट्ठी हो जाएंगी, और वो इस तरह से इकट्ठी होती है कि वो बहुत ही गंदी लगती है। और फिर आप लोगों को लगता है नहीं मैं नॉर्मल कपड़ों में तो पतली लगती हूँ, साड़ी में मैं मोटी लगने लग जाती हूँ। वो इसलिए लग रहे हो क्योंकि आप उसे प्रॉपरली टक नहीं कर रहे हो। सो आई थिंक दिस वाज अ वेरी वेरी, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बहुत कुछ बता सकती हूँ। एंड दूसरा चीज, अगेन इसके पीछे भी एक स्टोरी है। एक तो मैंने आपको बता दी हील बिना हील। अब आप देखिए ये वाली जो हमारी ड्रॉ स्ट्रिंग है, आप लोगों को दिख रही है ना, ये जो हमारी ड्रॉ स्ट्रिंग है इसको मैंने बुनवाया है और बहुत पतला ये बुनवाई गई है। अब हुआ यूं कि एक जन की ड्रेपिंग करके मैं घर पहुंची,
और वो जो मेरी क्लाइंट थी वो वेन्यू पे पहुंची और उनका फोन आया, डॉली जल्दी से आ जाओ, मेरी पूरी साड़ी खुल गई है। मैं बोले मेरी पहनाई हुई साड़ी खुल गई है, इम्पॉसिबल। बट फिर मुझे समझ में आ गया गड़बड़ कहाँ थी। मैं इमीडिएटली उनके पास भागी तो वो देखी कि एक्चुअली हुआ क्या था, नाड़ा टूट गया बीच में से, जो ड्रॉस्ट्रिंग थी वो बीच में से टूट गई। तो टूटती, क्योंकि ड्रॉस्ट्रिंग कैसे बनता है, ये जो कपड़ा जो हम पेटीकोट का काटते हैं उससे जो बच जाता है कपड़ा, उसी को सिल के वो नाड़ा बनाते हैं। सिलाई कहीं आपने जोर से नाड़ा टाई किया, जैसे आप ड्रॉस्ट्रिंग टाई करते हो टाइटली, अगर एक सिलाई भी खुली तो धीरे धीरे सिलाई खिलने की तो पूरी गुंजाइश है। तो और सैटन के पेटीकोट्स को तो प्लीज आप बिल्कुल नहीं पहने, क्योंकि सैटन के पेटीकोट से आप सबको पता है कि जब हम चलते हैं तो सैटन का पेटीकोट स्टैटिक हो जाता है, वो हमारी बॉडी से चिपक जाता है और फिर क्या होता है, वो पार्टी में ऐसी गंदी सी लगती है, आपके बम्ब के ऊपर पूरी सैटन की पेटीकोट चिपकी हुई है और नेट की साड़ी ऐसी गिर रही है या ऑर्गेन्जा गिर रही है, सो वो थोड़ा सा गंदा लगने लग जाता है। तो व्हाट आई फील इज, उन लोगों के लिए जो सैटन के पेटीकोट्स ऑलरेडी स्टिच करवा लिए हैं और आपको एक पर्टिकुलर साड़ी के लिए आपने वो सैटन के पेटीकोट स्टिच करवाया है, तो माय सजेशन वुड बी कि आप एक नॉर्मल मलमल का पेटीकोट सिलवाए, बहुत पतला, एकदम पतला, और बेज कलर का सिलवाए, क्योंकि वो आपके बॉडी के कलर का होता है एंड आई थिंक इट जस्ट ब्लेंड्स विथ योर स्किन। सो आप उसे सिलवाए, तो पहले आप वो जो नॉर्मल वाला है बेज कलर वाला पेटीकोट वो पहनेंगे, फिर आप सैटिन वाला पहनेंगे, और ट्रस्ट में आप कोई बिल्कुल मोटे नहीं लगोगे, बिकॉज वो मलमल का कपड़ा हार्डली एक मुट्ठी भर का जितना फैब्रिक होगा, और फिर आप सैटिन पहनोगे तो क्या होगा, जब आप चल रहे हैं तो आपके पाँव, आपका जो स्किन है वो मलमल के कपड़े को के आजू बाजू घूम रहा है, इट इज नॉट टचिंग द सैटिन। सो आपका जो प्रॉब्लम जो आपको लग रहा है वो प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा आपके सैटिन पेटीकोट्स का। और जो ड्रॉस्ट्रिंग वाली चीज है वो मैंने आपको सिखा दी कि ड्रॉस्ट्रिंग से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे टूटेगी नहीं, और आप बिल्कुल सेफ रहोगे इस तरह के डीकोट्स में। इसमें हमने 2 इंच वाले प्रॉब्लम को आपका सॉल्व कर दिया। इसी तरह से हमारे प्रोडक्शन लॉकडाउन के कारण हम आपको प्रोडक्ट नहीं दिखा पा रहे हैं। इसी तरह से जो लोग 4 इंच का हील पहनते हैं, मेरे जैसे लोग, तो 4 इंच के हील के लिए भी हमने आपके लिए एक अलग तरह का सोल्यूशन लाया है। साड़ी पैंट्स भी निकाले हैं, क्योंकि आजकल आपको पता है सब लोगों को पैंट के ऊपर साड़ी पहनने का एक नया चीज, नया तरीका हमने सिखाया है। तो साड़ी के ऊपर पैंट पहनने के लिए हमने एक अलग तरह का पैंट भी निकाला है। सो ये कुछ कुछ चीजें हैं, क्योंकि मुझे लगा कि मैं साड़ी नहीं बनाना चाहती हूँ, साड़ी बहुत सारे लोग बना रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे हैं। आई मीन मैं शायद कुछ भी नहीं कर पाऊँ उस फील्ड में, बट मुझे ऐसा लगा कि साड़ी का जो बेस है, जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन शुड बी द स्ट्रॉन्गेस्ट, तब आप एक ऊंची इमारत खड़ी कर सकते हो। उसी तरह मुझे लगता है कि साड़ी का फाउंडेशन शुड बी स्ट्रॉन्गेस्ट, तभी आप भारी से भारी साड़ी को टिका सकते हो। सो आई थिंक दिस इज वन ऑफ द थिंग दैट आई रियली वांटेड टू शेयर विद ऑल ऑफ यू। इसमें ये वाले चीज भी है और बिना इसके भी है, इफ यू वांट एनी ऑफ दोज। सो मेरा पेज है इंस्टाग्राम पे, अगर आप जाके चेक करोगे, आई एम बाय डॉली जैन, IAM by Dolly Jain. So that's my Insta page. तो आप जाओगे वहां पे तो you can see all the products. And if you want to order something or if you want to buy something, you can go to the website www.imstore.in. तो इसमें आप जाके आप you can just go and buy these things. So I think this is very, very important thing. Now let me show you something which is very important as there is pins are concerned, जो कि मेरे को आपको बताना ही था। एक तो साड़ी ड्रेपिंग करते वक्त प्लीज इस तरह के पेग्स ले आप, क्योंकि जब हम और जैसे ये 6th पेग है मेरा, बाकी जो पेग्स थे जो कंपनी ने बनाई थी वो बहुत हार्ड थे, एक्चुअली मेरे को दोनों हाथ लगता था तब जाके वो यूज कर पाते थे। तो उन्होंने ये चीज बहुत अच्छी बनाई है, इसको देखो आप एकदम एक हाथ से यूज कर सकते हो, इट्स वेरी वेरी इजी एंड इट्स गॉट गुड होल्ड।
So जो आपकी भारी से भारी साड़ी होगी वो भी आप इसमें आराम से पकड़ सकते हो. So I think can we take up some questions from the others also? Yeah, I have a question. Can I ask a question, Sapna Di? Of course you can. And Nishu also wanted to, Neetu also wanted to ask something. Yeah, please, because I want you all to let me know what are the things so that then I'll frame it accordingly. So आप बताएं अब. So Dolly ji, बोल रही अब मेरा गला दुख रहा है. Dolly ji, I have a question. Like the petticoat that you are showing us, it has two belts where you're saying without heel you fold it inside and you wear it. So don't you think the waist पे वो मोटा लगेगा? जैसे हम लोग कोई पतले दुबले तो है नहीं, अच्छा खासा पेट वेट निकला हुआ है. मैं भी बहुत अच्छी खासी हूँ. Don't worry about that. मैं 10 बार सोचती हूँ कोई भी चीज बनाने से पहले. मैं आपको दिखाती हूँ ये जो चीज है ये बहुत पतली वाली फाइन इलास्टिक दी गई है, एकदम फाइन इलास्टिक. नाउ द लॉजिक व्हाई वी हैव गिवन दिस इलास्टिक, मैंने ट्राई किया था बिना इलास्टिक के. होता क्या है, जब आप ये नाड़ा टाई करते हो और आप बहुत टाइट करते हो तो आपके वो जो रेड कलर की मार्क आती है या बहुत टाइट आपको फील होता है. ट्रस्ट मी, हमने इस नाड़े को इसके अंदर डाला है, इस इलास्टिक के अंदर. जब हम ये डाले और जब मैं इसके ऊपर साड़ी ट्राई की तो मुझे लगा कि साड़ी होल्ड भी अच्छी तरह से हो रही है और पेट में उतना प्रेशर भी नहीं लग रहा था. एंड दूसरा जो आपका क्वेश्चन है कि मोटा हो जाएगा, ये देखिए ये रहा. इट्स दिस थिन, इट्स रियली वेरी थिन. लुक एट दिस, इट्स वेरी थिन. सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट एट ऑल. मतलब क्योंकि ये मैं इस प्रोडक्ट को इतनी बार रिफाइन की हूँ कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि आपका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा. 15 साल से जो औरतों ने मुझे दिया है कि ये मेरे को ये प्रॉब्लम है, उस सब को लेके मैंने इसमें इम्प्लीमेंट किया है चीज को. डॉली जी, वंदना, क्या वंदना टेल मी. हाँ, जो हम पिन्स लगाते हैं, लॉक पिन्स साड़ी हाँ. में, तो आप बताएंगी सबको कि किस तरह के लॉक पिन्स लगने चाहिए. वेरी गुड. क्योंकि जनरली अगर पिन की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होती है तो साड़ी फट जाती है. मैं आपको दिखाती हूँ दोनों चीज, मैं साड़ी फाड़ के भी दिखाती हूँ. सबसे पहले तो नेट. अच्छा, अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. पिन को हमेशा नो मैटर व्हाट इट इज, आप ये वाले पिन ही यूज करेंगे. मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे. ये देखिए, ये लॉक पिन, जो डबल लॉक पिन्स होती है, नॉट नैपी पिन. नैपी पिन्स में क्या होता है, नैपी पिन्स में जो ये पिन होता है ये बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है. तो जैसे आपको कांजीवरम वगैरह पहननी है तो ये पिन घुसनी ही नहीं है. तो इसीलिए आप इस तरह का पिन ले, और इसमें इसकी ये बहुत शार्प रहते हैं. ये स्टेनलेस स्टील पिन्स होते हैं, सो दे आर वेरी वेरी गुड. अब आप देखिए, आपने इस तरह की पिन ली है. एक सेकंड में निकाल देती हूँ. ये एक बहुत ही अच्छा पिन ऑर्गेनाइजर बॉक्स है. ये देखिए, ऐसी बहुत ही काम का बॉक्स है ये. तो इस तरह से 4 पिन्स डाल दिए. और ये एक ड्रेप दीवा बोल के एक ब्रांड है. लोगों को लगता है ये मेरा ब्रांड है क्योंकि लोग बाग मुझे रजिस्टर करते हैं ड्रेप दीवा से, बट ये मेरा ब्रांड नहीं है गाइस. मैं उनकी ब्रांड एम्बेसडर जरूर हूँ. अच्छा, अब आप देखिए, जब आप एक नॉर्मल सेफ्टी पिन लगाते हैं, आप ये आपकी साड़ी है, आप सबको दिख रही है ना? बिल्कुल. ये आपकी साड़ी है, ये मैंने पिन लगाया और ये नेट है. मैं जोर से इसको खींचती हूँ. अब देखिए, मैं लिटरली आपको फंसा के दिखा रही हूँ. मेरी पूरी साड़ी फंस गई. ये देखिए, आप लोगों को दिख रही है पूरी साड़ी अंदर गई है. अब देखो, मैं इसको निकालने का, मुझे तो अटकल आती है इसलिए मैं निकाल सकती हूँ. तो ये हो गया. आपकी कोई भी साड़ी जैसे शिफॉन, जॉर्जेट, ऑर्गेन्जा, नेट, ये सब में मैंने देखा है मैक्सिमम क्लाइंट्स के साड़ी में होल हो जाता है, बिकॉज आप लोग ये नहीं करते. तो आपको क्या करना है, इस पिन को लेना है और इसके अंदर एक मोती डाल के रख दो आप ऐसे. जब आप ये मोती डालते हो और उसके बाद जब आप एक सेफ्टी पिन लगाते हो ना, और उसके बाद जब आप खींचते हो, लुक एट दिस, व्हेन आई एम पुलिंग दिस, व्हाट इज हैपनिंग, आपकी मोती रिस्ट्रिक्ट कर रही है उस फैब्रिक को उसके बियॉन्ड जाने से. तो वो जो कॉइल है वहां तक तो आपका कपड़ा पहुंचता ही नहीं है, इसलिए आपकी साड़ी सुपर सेफ है. तो फॉर ऑल द ऑर्गेन्जास, जॉर्जेट क्रेप, इनफैक्ट कोई भी साड़ी के लिए, कॉटन साड़ी भी हो तो क्यों होल हो. सो थैंक यू रश्मि. Shalini Singhal has a question. Shalini, Yeah, please. yeah, go ahead.
Hi, Dolly Didi. Hi. I have a question, Dolly Didi. जो आपका ये D-coat है, हाँ, हाँ. अगर वो साइज एक नॉर्मल स्मॉल मीडियम लार्ज में मिलता होगा, बट अगर मुझे बड़े साइज चाहिए अपने लिए, तो क्या ये ऑर्डर पे बन जाएगा? हाँ, इसमें हम लोग एक स्पेशल फीचर्स ऐड किए हैं जो कि आप नॉर्मली कहीं पे भी नहीं देखोगे. ये हमने बिकॉज आई वांटेड एवरीबॉडी टू बी बेनिफिटेड, वी एडेड अ फीचर. आप अपना वेस्ट मेजर करो, हिप साइड मेजर करो और लेंथ मेजर करो और हमें भेज दो. एंड हम आपको, बिकॉज अभी 8 कलर्स में ऑलरेडी है हमारे पास और 16 कलर्स और हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. बिकॉज एग्जैक्टली मुझे ये पता रहता है कि आने वाले सीजन का कलर क्या है. बिकॉज वी ऑल वर्क विद डिजाइनर्स, तो हमें पता रहता है कि आने वाले सीजन का कलर पैलेट क्या है. तो उस कलर पैलेट के अकॉर्डिंगली, जैसे ऑर्गेन्जा के फिक्स कलर्स है जो फैशन में है, तो उस कलर के हिसाब से हम कलर्स डी-कोट में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे, ताकि ऐसा नहीं हो आपको मार्केट से डी-कोट पेटीकोट खरीदना पड़े. क्योंकि एट प्रेजेंट हम लोग सिर्फ इसको ऑनलाइन कर रहे हैं और आप आराम से अपने मेजरमेंट को डाल के और यू कैन प्लेस योर ऑर्डर एज पर योर रिक्वायरमेंट. वील give it. Okay. Thank you so much, Didi. Thank you, dear. Thank you for your question. And we have Ashima Jindal who wants to ask a question. Ashima, go ahead. Hello, Dolly ji. I am a very big fan of you. Thank you. I tried some of your styles also. Oh, how sweet. Thank you. Actually, I want to know from you that the latest drape you have given the Jacqueline style. Two sari drape also. And I want to ask... नहीं, एक सेकेंड. Jacqueline Fernandez drape and? Two sarees at a time. Two sarees. एक ही साड़ी है, 2 साड़ी कहाँ है? नहीं, जैकलिन वाली एक है और बाकी आपने 2 साड़ीज वाला ड्रेप भी बताया था. 2 अलग-अलग हैं. वो अलग-अलग नहीं है, वो एक साथ है. वो एक साड़ी है. जैकलिन वाली एक ही है, जैकलिन वाला स्टाइल एक ही है, लेकिन एक बार आपने 2 साड़ीज ड्रेप भी बताया था. अच्छा, एक बार पहले बताया था. हाँ, ठीक है. तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये दोनों ड्रेप्स जो हैं, ये यंगस्टर्स भी सूट करेंगे या फिर हम लोग भी इसको ट्राई कर सकते हैं? देखो, मैं आपको बताती हूँ एक चीज. जैसे जैकलिन वाली जो ड्रेप है उसको मैंने यहाँ पे टक किया हुआ है और वो यहाँ से पूरी की पूरी, ऑब्वियसली आपको पता है एक्ट्रेस है तो उनका कहीं ना कहीं दे गॉट अ बॉडी टू फ्लॉन्ट, सो दे आर फ्लॉन्टिंग एंड दे आर कंफर्टेबल ऑल्सो. सो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे इस चीज को ले रहे हो एंड देन इस साइड आप इतना ज्यादा फ्लॉन्ट करने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो जो दूसरी वाले साइड का जो प्लीट्स मैंने हाथ में दिया है, आप हाथ में नहीं लेके कंधे पे डाल दो और यहाँ से उसको पूरे के पूरे चीज को कवर कर दो. ओके. और दूसरा जो है टू साड़ीज वाला, 2 साड़ीज का तो ड्रेप आप कौन सा वाला बोल रहे? एक तो मैंने 2 साड़ी पूरी, एक साड़ी को पूरा नीचे घाघरा बनाया था और एक साड़ी. हाँ, तो उसका ड्रेप एक्चुअली अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जूम पे ट्यूटोरियल्स ले रहे, क्लासेस ले रहे. उसमें एक दिन में एक ड्रेप सिखाते. तो आई थिंक यू ऑल कैन जॉइन मी इन दैट जूम ट्यूटोरियल क्लासेस, वेरिन एक दिन में हम एक ड्रेप सिखाते. जैसे अब नेक्स्ट थर्सडे आई एम डूइंग दिस हाउ टू वेयर अ नेट साड़ी. ओके. क्योंकि नेट साड़ी एक ऐसी साड़ी है जिसमें मैक्सिमम लोगों के पास है भी और उनको पहनने में भी दिक्कत होती है क्योंकि उनकी यहाँ की पतली नहीं सेट होती है, नीचे की सेट नहीं होती है. तो हम इस तरह से एक एक सब्जेक्ट को लेके, जैसे अभी 5 सब्जेक्ट पे ऑलरेडी हमारा ट्यूटोरियल हो चुका है. दिस इज माय 6th दैट आई एम डूइंग, बट एवरी टाइम एनीबडी न्यू इज जॉइनिंग, हम वापस से उनको रिफ्रेश करा देते कि बेसिक तक कैसे करते हैं, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऑल दैट थिंग. सो इफ यू वांट टू जॉइन यू कैन जॉइन मी इन माय क्लासेस. So Dolly ji, sorry, Sapna ji बोलिए. Are those sessions paid or are they free, Dolly? No, they are all paid sessions because I want to know. That's why I'm asking you. Okay. I have one more question. Yeah. Can I go ahead, Bhabhi? Yeah, please do. And then Bala Gar wants to ask a question after you. Okay. Dolly ji, I would request you to आप मुझसे हम लोगों से थोड़ा basic tips of draping a साड़ी शेयर करें, जो हम सब लोग रेगुलर में साड़ी पहनते हैं. उसकी बेसिक टिप्स, एक तो पिंस की हो गई, पेटीकोट की होगी, उसके अलावा बेसिक टिप में आप क्या बेसिक टिप्स देना चाहेंगी? और
I think I always feel जी I'm the main thing is लोगों का पेट बहुत दिखता है ना, कई लोग जब पहनते हैं इस तरीके से साड़ी तो बहुत सारा पेट दिखता है उनका या कमर दिखती है, तो उसके लिए कुछ बता दीजिए। आई थिंक जो इधर से कमर दिखता है उसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है ये। अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज। ये देखिए, जब आपने प्लीट्स डाली है, और मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कभी भी चौड़ी प्लीट नहीं डाले, ट्राई एंड मेक प्लीट्स अकॉर्डिंग टू योर शोल्डर्स, ठीक है? बहुत ज्यादा ब्रॉड प्लीट्स नहीं डालने की जरूरत है। जैसे ये वाली जो प्लीट्स है, ये मेरे कंधे से थोड़ी सी जो ये बाहर आ रही है, ये मेरे कंधे को चौड़ा दिखाती है। अब जैसे ही आप देखिए मैं इसको इधर करती हूँ कंधे पे, ऑटोमेटिकली योर फ्रेम स्टार्ट्स बिकमिंग नैरो। सो आपको क्या करना है, जितने भी आप प्लीट्स बनाए आप कोशिश करें कि आप कंधे तक ले। एयर होस्टेस जितनी पतली लेने की जरूरत नहीं है। We don't want to make those narrow pleats, but something which is like, say, I think I would say here, if I calculate here, I will show you. देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। If I calculate here, see, it should be here. It should rest on your shoulder like this. Something about 3.5 inches to 4. Not more than that. Don't take broader than that. एंड दूसरा चीज है कि जब आप इसको लेते हो तो खाली एक पिन कंधे पे लगाए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक पिन यहाँ लगा लेते हैं, फिर इनको इकट्ठे करके एक पिन यहाँ लगा लेते हैं। अब क्या होगा, जिन्होंने भी यहाँ पिन लगाई है, अब उनके कपड़े को अगर हम साइड से खींचना चाहे, ये वाली तो इधर आ जाती है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं। इसको आप ऐसे नहीं खींचोगे। इसको खींचने का तरीका होता है, अंदर से जो कपड़ा है ना उसको आप खींच दो। अंदर से कपड़े से को जब हम खींचेंगे तो क्या होगा, आपकी साड़ी प्लीट्स इक्वली मूव करेगी। अगर आप खाली इसको खींचोगे तो ये प्लीट्स पूरी हेवाया हो जाएंगी और बिल्कुल भी इसका सिमेट्री नहीं रहेगा। तो आई थिंक स्टॉप यूजिंग द सेकंड पिन, जस्ट यूज द टॉप पिन एंड ट्राई एंड शिफ्ट दिस अ लिटिल। एंड उसके बाद जो नीचे से आप पेट कवर करते हुए फैब्रिक लाते हो, तो जब आप पिन लगाते हो तो ट्राई एंड पुट द पिन, जो नीचे वाली जो पिन होती है उसको try and put it right below your navel. If you put that pin right below your navel, you will be able to make your pleats properly। और कपड़े को ज्यादा इधर नहीं लेके जाना जरूरी है, क्योंकि जब जिनका नीचे वाला पोर्शन हैवी होता है, अगर वो बहुत ज्यादा कपड़ा नीचे लेके जाते हैं तो क्या होती है, फिर उनकी प्लीट्स भी कम बनती है। जैसे नॉर्मली कॉटन साड़ीज में कम से कम 4 से 5 फीट बननी चाहिए, तो अगर आप बहुत ज्यादा नीचे ले जाके पिन करोगे तो आपकी सिर्फ 3 ही प्लीट्स बनेगी और फिर वो साड़ी बहुत गंदी लगती है देखने में। तो आई थिंक दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल। बाला गर्ग, आई एम अनम्यूटिंग यू, बहुत देर से उनका हाथ ऊंचा है। सॉरी, गो अहेड। हाँ जी बाला गर्ग, हाँ जी हाँ जी बाला। मैं यही पूछ रही थी, लाइक हमारा पेट नहीं, हम लोगों के हिप्स भी बहुत है, एंड वी फ्रॉम द फेस आल्सो वी आर वेरी ब्रॉड। सो जो नॉर्मली साड़ी ड्रेपिंग यंग गर्ल्स की होती है, दैट इज नॉट विद अस, एंड ऑटोमेटिकली आई डोंट नो, आई फील कि साड़ी पहनने से हम लोग और मोटे लगते हैं। उसका सॉल्यूशन बताओ। अच्छा, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, एक बहुत ऐसा चीज जो आप लोग सब गलती करते हो। अब मेरे को खड़े होना ही पड़ेगा, मतलब प्लीज डू। एक सेकंड रुको। आप तो बहुत देर से वेट कर रहे हैं कि आप खड़े होके कब दिखाएंगे हमें ड्रेप। अब आप देखो, मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, जो नॉट दैट आई एम शोइंग यू द होल ड्रेप, बट देयर इज समथिंग दैट आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड। ये आपका, अच्छा डॉली, आपने आज साड़ी क्यों नहीं पहनी ये बता दीजिए। मेरी एक्चुअली तीसरी शूट है, अभी मेरे को ये खत्म करके इमीडिएटली एक दूसरा शूट करना है। आपको पता है अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, सब कोई को पता है, हम लोग घर पे हैं तो कोई ना कोई चीज, कोई प्रोडक्ट की शूट आ गई। एक्चुअली ये कुर्ती भी किसी की आई भी है जिसकी शूट करके मुझे देनी है, और आई एम जस्ट रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, so you know in between I had to do that, so I knew this question will come up. So we didn't disappoint you with our question. No, please, nobody can disappoint anyone as far as you don't want to take it up. अच्छा, now देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ आप लोग कहाँ गलती करते हो। सबसे पहले तो, अच्छा कैसे बताऊँ आपको, अच्छा रतिका, okay, wait, I'll just put a belt on me.
ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू आप लोग गलती क्या कर रहे हो। अभी आप देखो ये वाली जो चीज है, ये वाली जो चीज है, ये तो आपने यहाँ पे टक कर दी, ये तो कहीं कोई गलत नहीं करता है। बट पीछे वाले साइड में आप लोग क्या गलती करते हो कि आप लोग जब ये प्लीट लेते हो ना, ये तो जिनकी ये लोअर पोर्शन हैवी है, देखो वो क्या करते हैं, अभी जिनका हैवी है वो क्या करते हैं, पूरा टाइट लेते हैं ये सोच के कि हम दुबले लगने लग जाएंगे। बट नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। एंड प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इतना खींचते हो कि आपकी साड़ी पीछे से चढ़ने लग जाती है। जिन्होंने सवाल पूछा था उनसे आप चेक करें कि यही प्रॉब्लम होती है उनके साथ। बालाजी कुछ पूछ रही है डॉली आपसे। बालाजी, हाँ जी हाँ जी। देखिए जब आप भी यही करती हैं, आप बहुत ज्यादा खींच के साड़ी पहनती है यहाँ से। नहीं नहीं, मैं पहली प्लीट बड़ी लूज रखती हूँ, that हाँ. even the design should come straight. Yes, now what I'll tell you what is your key to do is because your hip is Yes. lower, is more than your waist. I mean Yes. obviously हम लोग सबका रहता है, बट अगर किसी का ज्यादा है तो आपको क्या करना चाहिए पता है, ये वाली डिजाइन को आप स्ट्रेट तो लेते ही हो, बट यहाँ पे कोशिश करके एक छोटी सी प्लीट डाल दो। हाँ, छोटी सी प्लीट यहाँ पे डालने का कारण क्या होता है कि आपकी जो पटलियां हैं वो एक तो सीधे गिरेंगी, हाँ, और दूसरा है कि आपको बिल्कुल भी जब आप चलोगे तो आपको एक सेकंड में पहले बेल्ट, हाँ, एक तो आपकी पटलियां सीधे गिरेंगी, और दूसरा जब आप चलोगे ना तो आपकी साड़ी ऊपर नहीं चढ़ेगी पीछे से। बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी साड़ी पीछे से ऊंची चढ़ जाती है। वो ऊंची इसलिए चढ़ती है क्योंकि आप इतना तान के साड़ी को लेते हो और उसमें बिल्कुल भी स्पेस नहीं देते हो साड़ी को मूवमेंट करने के लिए। तो आई थिंक दैट इज वन थिंग दैट यू ऑल शुड नोट, दैट वंस यू टेकन द होल साड़ी लाइक दिस, प्लीज लुक एट दिस। यहाँ तक आपने लेके आया, यहाँ पे आप इसको एक छोटी सी प्लीट यहाँ डाल दो ताकि साड़ी थोड़ी सी कंफर्टेबल रहे और बहुत ज्यादा टाइट नहीं रहे। So we'll take one final question, Dolly. We have Geeta Nayyar, जो भी बहुत देर से Geeta Nayyar. Yeah, please go ahead. Yeah. Geeta Nayyar, go ahead, please. Hello, Dolly ji. How are you? Hi, Geeta. Hi, I'm great. I've seen many of your features in Facebook. I was really impressed by that. I'm teaching Delhi Polytechnic, and we study for the last 30 years every day. How sweet. Your tips are really great, but I want to know from where will you get those pins? You mean the sari pins or the pegs? Because I always wear normal pins, and your moti one is really too good, which I never did. So many. This I'm really. आप है ना, आप एक नंबर नोट कर लो, इनका नंबर है 700. एक मिनट 700 383 700 383 6096 6092 96. Okay. 700 383 6096. Okay. 609. इसमें इनके साथ देखिए ये आपको देते हैं, ऐसा बॉक्स आता है, मेरा तो जंबल हो गया। तो एक छोटी रहती है, एक बड़ी रहती है, एक मीडियम रहती है, गोल्डन रहती है, और इसी के साथ वो एक मोतिया भी देते हैं। तो आप मोती को भी यूज कर सकते हो बहुत इजीली, नहीं तो आप घर में कहाँ मोती ढूंढते रहेंगे आप। I know. So that way I think they give moti also, and it is a very good thing, you know. I have a question. Sorry, last question. I just want to, Rachna, before you start your last question, Neetu Garg has been wanting. Please. Neetu, Dolly, we have a huge fan. Not that we are all not fans of your work and you, but there is Neetu Garg. कहती सपना दी प्लीज मुझे उनसे बात करनी है, टेस्ट करना है, आप करने दो। मैंने तो बिल्कुल करने देंगे नीतू, बट मैंने वो जो पहले वो म्यूट हो रही थी, वो अनम्यूट नहीं हो रही है। वंदना दी, Sarchana, can you help please? Let me call her. Okay. Meanwhile, Sarchana, please go ahead with your question. I just wanted to find out, Dolly ji,
that वो जो आपने pegs बताए थे बड़े बड़े, एक तो वो pegs कहाँ से मिलेंगे और how do we use them for our pleats? Yes. So now Nishu. Now let me tell you one thing, that जब भी आप ये pegs लाते हो, ये pegs लोगों को लगता है कि जो कपड़े सुखाने वाले चिमटे हम लोग यूज करते हैं ये वही है. But guys, these are not those things. They are very strong. They can hold your heaviest of sarees. और ये सेम फोन नंबर पे मिलेगा जो फोन नंबर अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया है. आप इनके वेबसाइट में भी चले जा सकते हो. इट्स आई थिंक www.drapediva.com. DIVAA है. Okay, and how do you use them? So now what you do is when you're making pleats, क्या होता है, आपने पटली बनाई, जैसे भारी साड़ी की आप पटली बनाते हो, थोड़ी सी पटली बनाई, फिर एक सेफ्टी पिन लगा के उसको टिकाते हो, फिर थोड़ी और बनाई, फिर एक सेफ्टी पिन लगा के टिकाते हो, फिर थोड़ी और बनाई, फिर तो उससे क्या होता है कि आप अननेसेसरी होल्स बना रहे हो साड़ी में. अब इससे क्या होता है, बहुत इजीली आपने प्लीट्स बनाई, जैसे मैं आपको इसमें दिखाती हूँ. देखिए, अब आपने प्लीट्स बनाई, ये आपकी प्लीट्स, आपने प्लीट्स बनाई, और अगर आप कॉटन साड़ी भी पहन रहे हो, इन केस यू आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग हैवी, इवन इफ यू आर वेयरिंग अ कॉटन साड़ी, तो अब आपको इसको कैसे आप इकट्ठे करोगे. आप पहले यहाँ एक पिन लगा देते हो, फिर यहाँ एक पिन लगा देते हो. इंस्टेड ऑफ यूजिंग पिन्स, यूज दीज पेग्स. फिर आपने इसको एडजस्ट किया, फिर एक और पेग लगाया, फिर एडजस्ट किया, एक और पेग लगाया, तो आपकी साड़ी एकदम समी हुई रहती है. जब आपका फाइनल शोल्डर का पिन लग जाता है, फिर आप अपने प्लीट, नीचे के प्लीट्स और ऊपर के प्लीट से पिन्स निकाल दो, तो पेग्स निकाल दो, तो बहुत बहुत कन्वीनियंट हो जाता है इससे साड़ी पहनना. Alright, thank you, Dolly ji. Thank you so much. Thank you. And Neetu is unmuted now, Sapna di, I think. Okay, Neetu, quickly, we just have 1 minute left. Neetu. डॉली जी, थैंक यू सो मच. आपने इतने अच्छे टिप्स दिए हमें, और आपको फेसबुक पर बहुत फॉलो करती हूँ मैं. आपका डी कोड पेग्स कैसे आप यूज करते हो, सब देखती हूँ मैं उस पर. थैंक यू फॉर दैट. और एक मैंने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए ये ड्रेप बांधा है. जो आपने मुझे सिखाया था फेसबुक पर. Oh my God, look at this, so sweet. Thank you so much. Thank you so So much. sweet, stay blessed, Neetu. I'm so impressed. Dolly, on this So note, impressed. must share कि नीतू आपकी इतनी बड़ी फैन है कि वो सीख रही है आपसे वर्चुअली. जैसे एकलव्य था ना, एकलव्य भी तो सीखा था वर्चुअली, उसी तरीके से Oh my God. हमको सिखाने की कोशिश करती है. So this is a little bit I'm sharing about Neetu, and we at Devditi are known to start on time and are known to end on time. और जिस तरीके का एक्सपर्टीज है डॉली जैन आपका, आपके साथ एक सेशन तो बहुत कम है. तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, हम नीशू को बोलेंगे कि आपके बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के और एक सेशन और शेड्यूल करें जब आपको और हमें सुविधा हो, है ना. सो ऑन दिस नोट, मैं I think Nishu was like completely, like, you know, she just came surprisingly to me and she was like कि डॉली दीदी ऐसे ऐसे आपको करना है. अच्छा, उसने ये नहीं पूछा कि डॉली दीदी आप कर पाओगे क्या, बोले नहीं ये तो डॉली दीदी आपको करना है. आई सेड हाँ ठीक है, अगर इस तरह का सोशल कॉज है, आप सब जुड़े हुए हो, एंड ऑल साड़ी फैंस सिटिंग हियर, व्हाई शुड आई से अ नो. बट यू नो, टू टेक आउट टाइम फ्रॉम ऑल दीज, यू नो, अभी कितने लाइव सेशन सब जगह चल रहे हैं. But I'm really glad to connect with all of you. It was really a pleasure to know you all. Thank you, Nishu, and thank you everyone who is sitting and watching me here. Please wear sarees. I'll wear sarees, and you know, and to help me spread this art globally, because जब you know विदेशी जब हमारे देश में आए तो हमें जीन्स और क्रॉप टॉप और सब कुछ वेस्टर्नाइज करके चले गए. बट अब ये टाइम आ गया कि अब हम उन्हें साड़ी पहनाएं. बिल्कुल. और हम आपका वही मुहिम आगे कर रहे हैं. फेसबुक ग्रुप है इंडिया साड़ी चैलेंज, which has more than 25,000 women on it. और वो हम इसीलिए करा था to motivate women to wear the beautiful garment साड़ी. और जैसे हमने बताया, मन्ना दी और मैंने, कि हम लोग देवदीति फाउंडेशन के थ्रू इंडियन कल्चर, ट्रेडिशंस, द साड़ी, बिंदी, चूड़ी, द एंटायर ensemble is what we're trying to promote. So we thank you from the bottom of our heart, and we thank Nishu Jain, the coordinator, for putting you on to us. And thank you. Namaskar, मैं हूँ सपना खंडेलवाल.
फिर मिलेंगे एक नए सेशन के साथ. कल का सेशन मत भूलिएगा. It's a beautiful session by Riddhi Bahel, and on Thursdays you will be Thursdays with Sapna. So bye. Take care. I'm ending the meeting. Bye for now. Thank you, guys.